Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, today I am going to narrate you a very interesting story. The story is The Happy School. This is the story of Happy School and Raman Mama, a very old man who was not very learned yet wiser than many of us. Learned means बहुत पढ़ा लिखा होना. There was one thing he knew better than anyone, that love begets love, and there was nothing so bad in this world that could not be changed with love, kindness and understanding. And because he believed in this and acted accordingly, he was very popular, especially among young children whom he loved and understood best of all. ये जो स्टोरी है ये किसकी है? हैप्पी स्कूल की. और जो रमन मामा थे वो बहुत बूढ़े थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे. एक बात उनके लिए कंफर्म थी कि लव जो है प्यार प्यार से बढ़ता है, और ऐसी कोई भी चीज़ दुनिया में, ऐसी कोई चीज़ खराब चीज़ नहीं है जिसको हम प्यार से, दया से और अंडरस्टैंडिंग से चेंज कर सकते हैं. क्योंकि वो इन सब बातों में विश्वास करते थे और इसी के अकॉर्डिंग एक्ट भी करते थे, काम भी करते थे, इसलिए वो बहुत पॉपुलर थे यंग चिल्ड्रन के बीच में, जिनको वो बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार किया करते थे और वो उनको बहुत अच्छे से समझते भी थे. इन हैप्पी स्कूल many are children who came with a lost and forlorn look and threw a tantrum every morning. Tantrum बहुत नखरे करना, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ना कई बच्चे बहाने बना करके. Every morning underwent a magical metamorphosis. This is how the magic unfolded. उस हैप्पी स्कूल में ज़्यादातर बच्चे कैसे होते थे? जो लॉस्ट होते थे, जो फॉरलोन होते थे, अकेले होते थे, और जो मतलब बहुत ज़्यादा जो टेंट्रम करते हैं, नखरे करते थे, लेकिन वहाँ पर आने के बाद उनमें एक ऐसा चेंज आता था जो जादू से भरा हुआ होता था. और वो जादू अब किस तरह से होता था? नीचे स्टोरी पढ़िए. ऑफन पेरेंट्स ब्रॉट टू हिम देयर यंग चिल्ड्रन सेइंग दे वर नॉटी and didn't obey them, and punishments didn't seem to help. The old man, Raman Mama, as he was fondly called, only smiled and shook his head. He would pick up the child in his arms and tickle him on her under the chin till the frown turned into a smile. Then, turning to the parents, he would say, "There are no naughty children in this world, my friends, and if they appear so, it is because we have not loved or understood them enough. Send this little one to my happy school and you will soon see a change." अधिकतर क्या होता था? पेरेंट्स जो उनके बच्चे जो उनकी बात नहीं सुनते थे, वो कहते थे कि पनिशमेंट से भी काम नहीं बनता है, रमन मामा के पास लेके आते थे. रमन मामा उनको जो है तब तक उनको गुदगुदी करते थे आर्म्स में लेकर के, जब तक कि जो उनका गुस्सा था वो उनकी मुस्कुराहट में चेंज नहीं होता था. और फिर वो बच्चे को रिटर्न करते हुए कहते थे कि ऐसा कोई शरारती बच्चा नहीं है इस दुनिया में जिसको हम चेंज ना कर सकें, जिसको हम खुश ना कर सकें. और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि हमें सिर्फ ज़रूरत है तो ऐसे बच्चों को समझने की और सच्चा प्यार देने की. और उसके बाद उन्होंने उसको बोला कि इस बच्चे को जो है मेरे हैप्पी स्कूल में लेकर के आओ. Spending a few hours with Raman Mama was like a magical therapy for the parents and students alike. कुछ टाइम रमन मामा के साथ में निकालने का मतलब है कि एक जादू भरा उपचार होना, पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी. Now this happy school was no ordinary school. The strength of the school lay neither in a brick building nor in many highly qualified teachers. It didn't even have a proper building. The shade of the big people tree was where the children learnt all their lessons. Most of the children who came to Raman Mama's school couldn't afford pens or pencils or books or even a slate. The children were told to collect
a little sand from the river bed and spread it in front of them. Then, with a little twig service as a pen, they learned to draw the letters of the alphabets on it. As for reading, what could be more exciting than reading a letter that you have made on your own? वहाँ पर क्या था, रमन मामा का जो स्कूल था वो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, एक पेड़ का शेड था जहाँ पर वो क्लास होती थी. पेन की तरह से जो है एक ट्विग को लेते थे और जो वहाँ पर रिवर बेड में जो सैंड थी उसको फैलाने के लिए कहा जाता था, और इस तरीके से जो है वहाँ पर वो लोग लेटर्स को ड्रॉ करना सीखते थे और अल्फ़ाबेट को पढ़ना लिखना सीखते थे. Geography was learned by making large maps of the countries on the sand and then filling it in the mountains and hills with some more of it. The lakes and rivers had real water. Geography को कैसे पढ़ते थे? मैप बना करके सैंड में, और फिर उसमें माउंटेन्स और हिल्स को बना करके उसको और क्लियर करते थे. लेक्स और रिवर तो जो है वहाँ पर रियल वाटर जो था उसी से बनता था. Little clay models of animals and birds nested on the hills, which were covered with a forest of small leafy twigs. History was the best subject of all, for here the children took part as in a drama and waged wars, conquered territories, hatched plots, and signed treaties, which they never forgot. There was much excitement and discussion about the role to be played, the script to be written, the dialogues to be spoken, and the costumes to be worn. What better way to understand the past than by recreating the moment? जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी हिस्ट्री के लिए, बच्चे जो है एक्ट करते थे एज अ ड्रामा, और फिर ड्रेसेस पहनी जाती थी, कॉस्ट्यूम पहने जाते थे उनके अकॉर्डिंग, और इस तरीके से जो है मोमेंट को रिक्रिएट करके पास्ट को समझा जाता था. शॉपिंग वॉज फन with Raman Mama as the shopkeeper, who besides the usual things also kept all the nice things that children like to buy. Rice and pulses, vegetables and fruits were bought after paying the correct amount in shells and pebbles, each shell or pebble having its own value of course. जो शेल्स थे, पेबल्स थे, उनकी वैल्यू होती थी और उस पर जो है राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स इन सब को खरीदा जाता था. द चिल्ड्रन लर्न टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे and learned the true meaning of profit and loss and budgets. Trade and commerce, lending and borrowing and balancing accounts were some of the life skills that these young ones learned here. यहाँ पर ये बच्चे सब तरह का ज्ञान लेते थे प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमें करना है. लॉस, बजट बनाना, प्रॉफिट का क्या मतलब है, ट्रेड कैसे किया जाता है, बैलेंस अकाउंट्स कैसे किए जाते हैं, ये सब चीज़ें वो लोग सीखते थे. Each day of the week was divided into 2 periods and not more. Sunday was story day. Raman Mama was a great storyteller, and scenes from the Ramayana and Mahabharata, stories about Tenali Rama or the Panchatantra came vividly alive for the children. Imagination ran riot in the story hours, where each child had the chance to weave a story of his liking. हर बच्चे को चांस मिलता था कि वो स्टोरी को बना सके, कहानी बना सके और फिर उसको सुना सके. पंचतंत्र की कहानियाँ उसे सुनाई जाती थी, महाभारत की कहानियाँ सुनाई जाती थी. ऑन एवरी पब्लिक हॉलीडे द ओल्ड मैन टुक द चिल्ड्रन ऑन एन एक्सकर्जन टू द नेबरिंग फॉरेस्ट वेयर द चिल्ड्रन मेड फ्रेंड्स विद द ट्रीज एंड गॉट टू नो देयर नेम्स. दे लर्नड हाउ सम ऑफ देम वर मेडिसिनल एंड सम अदर्स बोर फ्रूट दैट were good to eat. They learned all about the animals and birds that inhabited the forest. जब फॉरेस्ट में जाते थे वो एक्सकर्जन के लिए, वहाँ बच्चे अपने नए नए फ्रेंड्स बनाते थे, नए नए पेड़ों को नए और उनके बारे में जानते थे किसका नाम क्या है. फिर वहाँ जो है वो ये भी उनको नॉलेज होता था कि कौन से पेड़ की मेडिसिनल वैल्यू क्या है, किस पेड़ में कैसा फल होता है जिसको वो खाना पसंद करते हैं, जिसको वो खाते थे.
ये सारी चीज़ें उन्होंने एनिमल्स के, बर्ड्स के बारे में जो वहाँ रहते थे फॉरेस्ट में, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया. The children were so happy that they never quarreled amongst themselves and were always hungry to know more. This was one school that they could not stay away from. ये ऐसा स्कूल था जहाँ से बच्चे जाना नहीं चाहते थे दूर. उनको यहाँ पर बहुत अच्छा लगता था. उन्होंने झगड़े जो आपस में बच्चे करते हैं वो बंद कर दिए थे और यहाँ एंजॉय करना शुरू कर दिया था. Some years later, many of them went to higher schools in the neighboring town, but they always looked back with pride and gratitude to their lessons under the peepal tree, where they had spent some of the happiest days of their lives. कुछ बच्चे जो है हायर एजुकेशन के लिए अपने नेबरिंग टाउन में जो स्कूल्स थे वहाँ चले गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी अपने जो पुराने स्कूल में पीपल ट्री के नीचे जो उन्होंने लेसन्स पढ़े थे वो हमेशा उसके लिए उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड शो किया, हमेशा उसके लिए आभारी रहे. जहाँ उन्होंने अपने हैप्पीएस्ट डेज स्पेंड किए थे उस जगह के लिए वो हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करते थे. रमन मामा हैज़ लॉन्ग डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, बट द पीपल ट्री still stand tall and majestic, a true reminder of his stature. In pockets of our land, in many a school unknown, there exist many unsung heroes like Raman Mama. रमन मामा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो पीपल ट्री के नीचे उन्होंने जो स्कूल चलाया था वो अभी भी एक ट्रू रिमाइंडर की तरह से है. सब उसको याद करते हैं. बहुत सी जगह यहाँ पर ऐसी हैं दुनिया में जहाँ बहुत से हीरोज़ हैं रमन मामा की तरह से जिनको कोई नहीं जानता. दिस स्टोरी इज़ अडेप्टेड फ्रॉम द हैप्पी स्कूल फ्रॉम द टेल्स ऑफ इंडिया बाय दौलत पांडे फॉर द औरोबिंदो आश्रम ट्रस्ट. तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से एक छोटा सा स्कूल जहाँ पर प्यार और अंडरस्टैंडिंग के साथ एजुकेशन दी जाती थी, वहाँ जाकर के बच्चे अपना एंजॉय करते थे, उनमें चेंज भी आता था और उनको उस जगह से अटैचमेंट भी था. तो आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी. नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.